Assalamu alaikum everyone. What is business agility? आजकल in today's modern world, how do you bring your business from one point to another and bring speed, agile in its movement? How do you do that? So that's the topic. That's today's topic for us, and we have Faisal Fahim with us, who will be talking about increasing business agility through scaled agile framework. So let's bring Faisal into the show. Assalamu alaikum, Faisal. How are you? Walaikum Assalam, I'm fine. What about you? Alhamdulillah, all good. So Faisal, I'll leave the floor to you. It's all up, right? Mm-hmm. Oh, You can start now. all good. Assalamu everyone, and thank you so much, Umar and Salman, for inviting me to for this presentation. The thing is, what I'm going to present today is business agility and Safe Five framework. Uh, the thing is, right now, at what's happening is it's all about basically business agility. Right now there's a very famous buzzword happening everywhere. It's all about transformation. All the organizations in the world are going through a transformation phase, and transformation is all about changing the way they used to work. So what's happening now is that they are moving from a typical way of working to a different way of working, and that's where business agility comes about. And what is Safe 5? And Safe 5 has been pitched in, has been presented by Scaled Agile Framework, or SAFE is an organization that's basically providing a sort of a framework for everyone to and every organization to implement business agility within the organization. So that will be our topic today. It's a very vast topic to discuss, but I'll try my best to cover as much as possible. Now the thing is, about myself, my story is simple. I'm basically based in Melbourne, Australia. I've done an MBA in technology management from University of New South Wales. Did my engineering from Pakistan long time back. I hold around 22 industry organized certification like PMP, SAFE, SPC, Lean Six Sigma. I've got 21 years of professional experience, 11 years of training experience, and currently I'm running a company called Valuematics Australia here in Australia. Now, the thing is, when you talk about agility, before talking about agility, yeah, in simple word, agile के मुताबिक बात करने से पहले, yeah, basically we talk about waterfall. So what has happened is that waterfall method has been there for a long, long time, and what has happened is that we have delivered all our projects, in a typical waterfall model. So my experience was, my first, experience, my first taste of agile framework was back in 2012. And before that, I was, using the PMI, PMBOK methodology to deliver my projects, as I was working as a program and a project manager for various organizations in the Middle East. And what happened is that, when I moved to Australia, I ended up working in a typical Scrum environment. And if you see this figure, this diagram is a typical Scrum way of working. And I hope, since I'm talking to people who are either working in a typical agile domain or in agility, I hope they understand that this is a typical, Scrum model where you develop things in 2 weeks sprints, and you have got concept of daily standards and everything. So we were using the same concept of, Scrum based delivery, and we were using all the sprint planning, daily standard, backlog refinement, sprint retrospective, all these sorts of things. And we used to have our own Kanban board, through which we are using and managing our, delivering our user stories. But and some of the famous agile methodologies that we have at that point of time was Scrum or extreme programming, like pair programming or lean software development. But what happened was, as the concept of so one thing before going into that, Scrum is a model that we were using in our development team at a team level to deliver value to the business. What happened is that there was a journey that happened, and it was transformation journey. And one of the things that came about with the word transformation was the concept of business agility. So what happened? Business agility. This term was coined
in a way like that. Instead of working in a typical team, structure and using the principles of Scrum at a team level, why not take the principle of agile and agility and take it to an organization level, the whole end-to-end organization enterprise level, and that's where the concept of business agility comes in. So business agility is nothing. It's all about ensuring that you are able to make all the end-to-end processes or the delivery model within the organization as agile as possible. So business agility is all about that instead of working at a typical team level and using Scrum, let's take the principle of agility to each and every level of organization. So for example, take it to the leadership level, take it at a portfolio level, take it to the program level to ensure that you use the principles of agile and in within the whole end-to-end perspective of business to ensure that the all the process within an organization is 100% agile. So in simple words, make making your own organization capable of dealing with ever-changing business challenges and ensuring that they deliver value in shorter time frames while keeping their competitive advantage. आसान लफ्जों में आप जो स्क्रम के जो भी आपका मॉडल है जो आप टीम लेवल पे यूज कर रहे थे उसको आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पे लेके जाओगे, प्रोग्राम के लेवल पे, पोर्टफोलियो के लेवल पे, मैनेजमेंट के लेवल पे, एग्जीक्यूटिव के लेवल पे, और आप ये इंश्योर करोगे कि आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 100% एजाइल बेस्ड हो. और दैट्स व्हाट द कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एजिलिटी इज, मेकिंग अ होल ऑर्गेनाइजेशन एंड टू एंड एजाइल. प्रोसेसेस के अंदर एजिलिटी आनी चाहिए ताकि आप अपने कस्टमर को वैल्यू कम से कम टाइम में प्रोवाइड कर सके. बिकॉज इन द एंड इट्स ऑल अबाउट providing value to the customer. See, the way all the organizations are shaping up in the world, it's a race of providing value to the customer in the fastest time frame. And hence, like we have got so much of competition in everything. For example, अगर हम cloud की बात करते हैं, we have got AWS, we have got Azure, we have got Google Cloud. AWS leads the way. The reason is that they have been extremely agile in their processes. So what has happened is that they have been able to deliver a typical cloud-based platform in the shortest time frame. And what has happened is that companies like Microsoft, Google has followed them. So in the end, it's all about आप कितना जल्दी value अपने end user customer को provide कर सकते हो. So that's what the game of business agility is. Now, what is SAFe? SAFe is basically scaled agile framework for enterprises, considered to be the world's leading framework for business agility. SAFe, I believe, started back in 2011. और जो उनका concept ये था, the concept was to ensure that they provide a framework for every organization to achieve an end-to-end business agility. So SAFe for lean enterprises is a knowledge base of proven integrated principles, practices, and competencies for achieving business agility by implementing lean, agile, and DevOps at scale. अगर उसके नाम में देखें आप तो there is something called scale. What is scale? It's like it can be scalable and you can take it at any level. और सबसे अच्छी बात ये है, मतलब एक बहुत बड़ा misconception about SAFe ये है कि SAFe is like Scrum. SAFe के अंदर Scrum मौजूद है. In simple words, what SAFe basically do is that it has taken all the best practices of agility and lean and put it together in a framework. So lean के जो principles हैं वो it's all so what is lean? If I ask someone, lean is all about making sure that you remove all sort of waste in your process. तो अगर अपने process को आप lean बनाओगे तो आपका process efficient होगा. So what has happened in SAFe is that they're taking the principle of lean, agile, and DevOps and Scrum and Kanban and everything and put it together in a framework. सही है. और जो सबसे जो most important thing है इसके अंदर, now it may be a very heavy concept because right now I don't think so like SAFe is very much implemented in Pakistan, but I believe it's a good opportunity for you people to search it out and read it because SAFe will eventually reach there and I believe it's a beautiful framework. So what's happening is that अभी तक जब आप for example Scrum team की जब आप बात करते हो, when you talk about a typical Scrum team, what happens in Scrum team is that basically you are having a sort of a agility or team level agility going on.
जहां पे आप शॉर्टर टाइम फ्रेम में चीजों को डिलीवर कर रहे हो। बिजनेस एजिलिटी में कंसेप्ट ही यही है कि आप उस टीम और टेक्निकल एजिलिटी को उठा के दूसरे लेवल पे लेके आ जाओ। और एक कंसेप्ट इसमें है बहुत जबरदस्त, इसको हम लोग कहते हैं वैल्यू स्ट्रीम थिंकिंग। तो वैल्यू स्ट्रीम थिंकिंग इज ऑल अबाउट मेकिंग श्योर कि जो ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू स्ट्रीम है उसके लिहाज से अपनी डिलीवरी को अलाइन करो उसके साथ। नाउ this is your typical framework of SAFe. And before that, what I'll do is, all right, fine. So if we talk about business agility, this is the whole SAFe framework. और इसकी वेबसाइट भी है scaledagileFramework.com. I'll suggest each and every one of you to go and study over there. It's a beautiful framework. और इस पूरे फ्रेमवर्क को देखें तो दैट्स a typical model of achieving business level agility in your organization. So, for example, like to very straight, it's a massive topic. इसके 3 दिन के courses होते हैं. I'll just try to summarize it as much as possible. देखिए सेफ के 3 levels हैं. एक essential है, एक लास्ट solution है, एक portfolio है. तो essential level पर अगर देखें तो ये आपके एजाइल टीम्स है और आपके पास प्रोग्राम मैनेजमेंट की टीम्स है जो कि आपके स्पेसिफिक डिलीवरी मॉडल पे काम कर रही है. तो आपकी टीम बैकलॉग मौजूद है, आपके प्रोग्राम बैकलॉग मौजूद है. और टीम क्या होगी, वो टिपिकल स्क्रम और एक्सपी के प्रिंसिपल्स को यूज करते हुए 3 months की साइकिल में दे आर डिलीवरिंग वैल्यू टू द बिजनेस. So what happened is that they at program level there's a planning that happens, जिसको हम PI planning कहते हैं. And what happens is that they people take the concept of PI and take it back to the team level, and they put it in a specific team backlog, and then they basically deliver the project in the form of a 3 months PI, 3 months program increment in 2 weeks activation. So what's happening is that essential level पे वही काम हो रहा है जो कि आपके एक तरीके से स्क्रम के अंदर होता है कि आप छोटे स्प्रिंट्स में चीजों को डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं. जो दूसरा इसका लेवल है वो लास्ट सोल्यूशन लेवल है. और इसमें क्या है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन की समझ ले तो टेक्निकल कैपेबिलिटी आ जाती है. तो यानी हाउ स्ट्रॉन्ग इज द आर्किटेक्चर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग आर्किटेक्चर रनवे कहते हैं. तो लास्ट सोल्यूशन लेवल पे यू इंश्योर दैट योर organization has got a very strong architecture runway for the team to deliver the project on it. और जो इसका स्ट्रेटेजी लेवल है वो है आपका पोर्टफोलियो लेवल, जहां पे आपके एग्जीक्यूटिव होते हैं जो कि आपकी स्ट्रेटेजी पे, स्ट्रेटेजिक थीम्स पे काम करते हैं. सही. तो ये अगर इस पूरे फ्रेमवर्क को देखें तो फ्लो ऐसे है कि यहाँ पे स्ट्रेटेजी लेवल पे आपकी बिजनेस स्ट्रेटेजी डिसाइड होती है. एक पोर्टफोलियो कैंपेन होता है जिसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल इन वन कैलेंडर ईयर हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम और इनिशिएटिव्स यू आर गोइंग टू डिलीवर. इट विल कम डाउन टू द एसेंशियल लेवल. द ये जो कैंपेन है इस कैंपेन को फीड करेगा प्रोग्राम बैकलॉग को. So program management team is going to pick up something from the portfolio backlog. Portfolio से आएगा कि भाई okay, for example this initiative need to be delivered. प्रोग्राम लेवल पे उसके फीचर्स बनेंगे, फीचर्स बनाए जाएंगे और फिर फीचर्स बनने के बाद पीआई प्लानिंग होगी. पीआई प्लानिंग के बाद टीम लेवल पे उसको डिलीवर किया जाएगा. और उसमें बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो कि लाइक ऑर्गेनाइजेशन एजिलिटी जैसे, जो कि हम आगे थोड़ा बहुत डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे. नाउ जस्ट टू मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू, आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा. आई जस्ट मेड इट टू मेक थिंग्स इजी फॉर यू गाइस. सेफ में जो डिलीवरी होती है उसमें आपके 3 तरह के समझ ले 3 लेवल होते हैं. आपका पोर्टफोलियो, प्रोग्राम एंड टीम. तो पोर्टफोलियो लेवल पे क्या होता है, आपका पोर्टफोलियो विजन होता है, स्ट्रेटेजिक थीम्स डिसाइड होती है कि फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक कैलेंडर ईयर में क्या चीजें डिलीवर होनी है. और फिर लिस्ट ऑफ इनिशिएटिव एज पर वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग एंड इज रिप्रेजेंटेड ऑन द कैंपेन बोर्ड, जो कि पोर्टफोलियो कैंपेन होता है. जो पोर्टफोलियो कैंपेन में जो भी आपके इनिशिएटिव्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, वो आपके पिक करता है कौन, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, जो कि एक स्पेसिफिक इनिशिएटिव को पिक करेगा, उसके लिस्ट ऑफ फीचर्स डेवलप करेगा और उसके बाद वो सब के सब प्रोग्राम बोर्ड का पार्ट बन जाएंगे. फिर पीआई प्लानिंग होती है जो कि 1 से 3 मंथ होती है.
ठीक है, और उसके बाद होगा क्या, तमाम, और अगर इसमें देखा जाए कि पीआई प्लानिंग में you have got your agile team, your scrum master, your product owners, and your RTE and all these, like the other RTE is your chief scrum master. ये सब के सब होते हैं प्रोग्राम लेवल पे, जो है ना, ये पूरे 2 दिन की प्लानिंग होती है। और उसके बाद it will go down to the team level. After the 2 days of planning, the team will go and they will work in a typical, typical sprint way of working, नहीं स्क्रम के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए ये हर 2 वीक्स अल्टरेशन पे या स्प्रिंट पे काम करेंगे अगले 3 महीने टू डिलीवर अ फीचर। तो बेसिकली इट्स पोर्टफोलियो फीडिंग टू प्रोग्राम, प्रोग्राम फीडिंग टू टीम, दैट्स हाउ इट इज वर्किंग। नेक्स्ट अप, जो हार्ट एंड सोल ऑफ जो सेफ इंटरप्राइज है वो है पीआई प्लानिंग। अब पीआई प्लानिंग इज अ ह्यूज मैसिव सेशन। व्हाट हैपन इज दैट कि पोर्टफोलियो कैनबैन से जो भी आपके प्रोडक्ट मैनेजमेंट ने जो भी प्रोग्राम, जो भी इनिशिएटिव पिक किया है, वो सब के सब पीआई प्लानिंग के अंदर है। फॉर एग्जांपल, इन पीआई प्लानिंग योर प्रोडक्ट मैनेजमेंट इज गोइंग टू कम विद अ लिस्ट ऑफ फीचर्स, एंड व्हाट विल हैपन, याद रखिएगा पीआई प्लानिंग प्रोग्राम इंक्रीमेंट प्लानिंग इसको कहते हैं, यानी एक मैसिव प्रोग्राम का छोटा सा इंक्रीमेंट है जिसको आप प्लान करेंगे। इट्स अ हार्ट एंड सोल ऑफ अ सेफ बेस्ड एंटरप्राइजेस। So what happened is that 2 दिन, for 2 days, everyone from the program is going to sit together and they are going to plan for, okay, what they are going to deliver in next 3 months. ये बड़ा ही जबरदस्त किस्म का ओपन सेशन होता है, सही है। और इसको फैसिलिटेट कौन करता है, आरटीई। आरटीई इज बेसिकली नोन एज रिलीज ट्रेन इंजीनियर, या आपका आसान लफ्जों में चीफ स्क्रम मास्टर इसको फैसिलिटेट करेगा। टीम्स होंगी अपने स्क्रम मास्टर्स के साथ, 2 दिन तक पूरी प्लानिंग होती है। And after 2 days, all the teams will go back with a specific feature and plan, and then they will work for 3 months, and they will just follow the principle of Scrum. 2 weeks के activation तो next 3 महीने काम करेंगे और कोई ना कोई फीचर डिलीवर करेंगे। ठीक है, एवरीथिंग, देयर आर 2 थिंग्स इन सेफ। एक है आपका प्रोग्राम इंक्रीमेंट और दूसरा आपका वैल्यू स्ट्रीम। एक चीज हमेशा होती है, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखी गई है कि वी in organization, what we do is that we invest money on projects. Safe कहता है कि don't invest money on projects, invest money on value stream. अब वैल्यू स्ट्रीम अगर इसकी आप पिक्चर देखो गौर से तो इट्स लाइक एंड टू एंड प्रोसेस। तो इनिशिएशन से लेके किसी भी प्रोडक्ट की गो टू मार्केट तक आप एक पूरी वैल्यू स्ट्रीम बनाते हो और आप फिर वैल्यू स्ट्रीम एनालिसिस करते हो। वैल्यू स्ट्रीम इज बेसिकली अ लीन टूल। जब हम ये कहते हैं कि सेफ इज अ टिपिकल लीन एजाइल फ्रेमवर्क, तो उन्होंने ये टूल बेसिकली लिया है लीन इंजीनियरिंग से, जिसमें वो एंड टू एंड हाई लेवल प्रोसेस बनाते हैं और बेस्ड ऑन द प्रोसेस दे एनालाइज कि कहाँ पे आपका लैग है, कहाँ पे जो है ना प्रोसेस में इश्यूज है। एंड बेस्ड ऑन दैट what they say is that instead of investing your money in any other project, you invest the money, invest the budget on the problem area of value stream. rather value stream analysis करो डिटेल के साथ, और उसके बाद आप जो है जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है, जो भी आपको प्रोग्राम रन करने हैं, वो वैल्यू स्ट्रीम लेवल पे आप जो उसको चलाओ, और वैल्यू स्ट्रीम जो प्रॉब्लम दिखा रहा है उधर आप बेसिकली इसकी इन्वेस्टमेंट करो। तो अगर हम पोर्टफोलियो लेवल पे जाते हैं, दैट्स वे इट इज हैपनिंग। They do all sorts of value stream mapping based on the problem that value stream show them. They put all the initiative in a portfolio Kanban. And based on that, they will then invest money where the problem lies. एक बहुत बड़ा issue और problem ऐसा आता है, what happens is that कि, और ये बहुत बड़ा issue है था before this concept of safe came along, कि usually organization में के अंदर PMOs होते हैं, और पीएमओ क्या कहते हैं, उनका लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स होते हैं और दे इन्वेस्ट मनी ऑन द प्रोजेक्ट। एंड समटाइम्स क्या होता है कि वो वैल्यू बेस्ड रियलाइजेशन एनालिसिस नहीं करते हैं उसकी। तो व्हाट हैपेंस दैट एक ये प्रूवन डॉक्यूमेंट है कि अराउंड 40% ऑफ प्रोजेक्ट्स जो ऑर्गेनाइजेशन करती है वो ऑर्गेनाइजेशन को कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करती है। इट डजंट प्रोवाइड एनी वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन। So that means if you are investing in 100 projects, you are investing money in 40 projects that doesn't provide any value to the organization.
ये प्रॉब्लम आसानी सॉल्व हो सकती है वैल्यू स्ट्रीम से। कि अगर वैल्यू स्ट्रीम एनालिसिस कर लो और ये देख लो कि प्रॉब्लम एरिया कहाँ पे, तो यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट योर बजट एट द प्रॉब्लम एरिया। ऑल गुड। नाउ बिफोर मूविंग, if anyone has got any questions. कोई भी क्वेश्चन किसी को पूछना, एनीथिंग टू आस्क? No, Faisal, we don't have any questions right now. You could continue with your knowledge. All good. I hope I'm not scaring people away. That's for sure. No, I doubt it. I Okay. highly doubt it. Okay. So just to take you back again, because आप अगर जिसको पता है उसको पता है, जिसको नहीं पता वो, it's a heavy concept. If we talk about business agility is nothing. Just take your principles of agility, the principle of Scrum, and take it to every level in the organization. सही है? सेफ एक फ्रेमवर्क है जो कि आपको ये बता रहा है कि आप सक्सेसफुली बिजनेस वैल्यू कैसे प्रोवाइड कर सकते हो बाय यूजिंग बिजनेस एजिलिटी। ओके। और ये एक समझ ले बहुत ही हाई लेवल, मैंने यहाँ पर समरी आपको बना के दी है कि पोर्टफोलियो लेवल पे होती है प्लानिंग, और वो जाती है प्रोग्राम लेवल पे, और फिर प्रोग्राम लेवल से टीम लेवल पे। ठीक है। और पीआई प्लानिंग होती है प्रोग्राम लेवल पे, और फिर टीम लेवल पे जो आप प्लान करते हो आप उसको इंप्लीमेंट करते हो। और पोर्टफोलियो लेवल पे होती है वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग, जो कि आपको ये बताती है द प्रॉब्लम एरियाज विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन वेयर यू नीड टू इन्वेस्ट योर मनी, बिकॉज व्हाट वैल्यू स्ट्रीम इज गोइंग टू गिव यू कंसेप्शन से लेके गो टू मार्केट तक क्या प्रोसेस है। लिहाजा अगर आप अपने एंड टू एंड प्रोसेस को एफिशिएंट करोगे तो आप किसी भी प्रोडक्ट को ज्यादा जल्दी डिलीवर कर सकोगे। जब आप ज्यादा जल्दी डिलीवर करोगे तो आपको क्या मिलेगा? कंपिटिटिव एडवांटेज। जब आपको कंपिटिटिव एडवांटेज मिलेगा तो आपका बिजनेस जो है वो आपके कंपटीटर आगे निकलेगा। और साथ साथ by using this technique you are providing value to the to everyone in a very short time frame. So that's the magic of value stream mapping. और ये समझ लें कि सेफ के अंदर प्रोग्राम इंक्रीमेंट और वैल्यू स्ट्रीम, that's where the magic is. Just imagine as a PMO manager आप प्लान कर रहे हो कि यार अगले साल हमें कौन कौन से प्रोजेक्ट डिलीवर करने हैं। अब हर बंदा आपने एनालिसिस की, आपने ऑडिटिंग की, ऑर्गेनाइजेशन की इश्यूज का आपने किया, उसके बाद व्हाट हैपन इज दैट आपने बेस्ड ऑन द फीडबैक फ्रॉम योर ऑडिटर्स, फ्रॉम पीपल, फ्रॉम मैनेजमेंट, फ्रॉम एग्जेक्स, आपने लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट बना लिया और आपने कहा मुझे ये डिलीवर करना है। ये प्रूवन थ्योरी है कि 40% उनमें से वो प्रोजेक्ट होंगे जो ऑर्गेनाइजेशन को कोई वैल्यू नहीं दे रहे होंगे, वो किसी का ख्याल होगा, किसी की लॉजिक होगी, या ये काम भी कर लो। वैल्यू स्ट्रीम जो है ना एक समझ ले कंसेप्चुअल ट्रुथ बेस्ड प्रोसेस है जो कि आपको एंड टू एंड बता देगा कि यार एक प्रोडक्ट बनने से पहले और मार्केट तक जाने तक उसका क्या प्रोसेस हो सकता है। और वैल्यू स्ट्रीम की जो सबसे जबरदस्त बात ये होती है कि वैल्यू स्ट्रीम ब्रेक साइलोज। हर ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो होती है 1.5 इंच की मस्जिद, साइलोज। वैल्यू स्ट्रीम क्या करता है कि वो एंड टू एंड जाता है तमाम साइलोज के और बता देता है कि प्रॉब्लम कहां पे। That's a huge thing when you work on the portfolio level in safe organization. Now, safe की के लिहाज से बिजनेस एजिलिटी की बेसिकली 7 को कंपिटेंसीज है। और बीच में देखें तो कौन बैठा हुआ है? कस्टमर सेंट्रिसिटी, यानी कस्टमर। देखें what has happened is that there was a point in everyone's life, आप में से different लोग different अपने एक्सपीरियंस लेवल पे होंगे, where organization used to deliver products and give it to the end user कि भाई तुम्हें you like it or not, take it. और based on the feedback फिर उसका version 2, version 3, version 4, version 20 चलते रहता था। कॉन्सेप्ट क्या आया बिजनेस एजिलिटी का? भाई के कस्टमर will sit right in the center and based on the concept of customer centricity आप कहोगे deliver value। कस्टमर सेंट्रिसिटी से रिलेटेड एक और चीज भी होती है जो कि बहुत पॉपुलर हुई, जिसका नाम है डिजाइन थिंकिंग। डिजाइन थिंकिंग में इट्स ऑल अबाउट एम्पैथी, कस्टमर एम्पैथी, कि कस्टमर के लिहाज से उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। ठीक है। तो आपके बिजनेस एजिलिटी के आपके पास समझ लें कि डिफरेंट कंपिटेंसीज है।
एक इनमें से एक ऐसी कंपिटेंसी जिसपे अगर आप किसी एजाइल बेस्ड एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो, यू आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट, एंड दैट्स टीम एंड टेक्निकल एजिलिटी. जब आप स्क्रम का मॉडल इंप्लीमेंट करते हो तो यू आर गेटिंग व्हाट, यू आर गेटिंग अ टीम लेवल एजिलिटी. ओके ठीक है फैसल, जी. सॉरी आपको कट किया थोड़ा सा. वी हैव अ कपल ऑफ क्वेश्चंस. मैं इन क्वेश्चंस को सामने लेकर आऊं क्या? या इफ यू वांट, इफ यू कैन रिपीट द क्वेश्चन, बिकॉज जब ये स्क्रीन पे जब पावर पॉइंट चली, आई एम नॉट एबल टू सी द क्वेश्चंस. डेफिनेटली आई विल डू दैट, डेफिनेटली आई विल डू दैट जी. या पहला पहला क्वेश्चन हमारे पास आया है उमर खालिद की तरफ से. इज सेफ फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस ओनली, और if it is, then how do we figure out whether our organization is large enough to adopt safe or not? it's a awesome question, beautiful question. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सेफ का जो अर्लियर वर्जन था, अगर इसका नाम भी देखें, ये स्केल्ड एजाइल फ्रेमवर्क फॉर इंटरप्राइजेस. So initially, SAFE was very much applicable for large enterprises. But what has happened is that with the advent of SAFE 4.6, जो इससे पहले वाला वर्जन था, इन्होंने उसको हाई लेवल पे लेके आ गए हैं. So now what you can do is that instead of using the whole end-to-end business agility model, you can only use couple of them. यानी यानी अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में टीम एंड टेक्निकल एजिलिटी और अजाइल प्रोडक्ट डिलीवरी से काम चल रहा है, you don't need to go end-to-end. So SAFE, ideally SAFE is for large organization, but now it's being used by medium to small organization as well. Okay, okay. Another question is again from Umar Khalid. Apart from organization size, what are the other factors which encourages us to prefer safe over other frameworks? It's a very good question. The biggest advantage of SAFE is the concept of customer centricity, number one. Number two, SAFE के जो principles हैं, it's very much, aligned to the human way of working. Human centric design के जो concept है, उससे SAFE बहुत ज़्यादा वो. Thirdly, SAFE की जो सबसे बड़ी खूबी है कि, it has embedded the best practices from Lean and from Scrum and from XP and brought it together. So one of the biggest advantage of using SAFE is that you are using the best of all worlds. Awesome. We have another question. Is the adoption of basic frameworks such as Scrum a prereq to go for safe? यानी कि स्क्रम क्या एक प्रीरेक होती है अडॉप्शन के लिए, सेफ की अडॉप्शन के लिए? You know what? बे- Please continue. क्योंकि again, the whole question, let me read the whole question to you. Is the adoption of basic frameworks such as Scrum a prereq to go for safe? Asking it because a lot of organizations are struggling there. Should they attempt for a bigger change like safe, or should they? Basically, it's asking like if organizations should aim to go for Scrum first and then go for safe, or they should directly move towards safe. Yeah, I must say, I'm very impressed with your audience, because ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है जिसने भी पूछा है. अब Umair Khalid. उमर खालिद भाई इज अ जीनियस, नो डाउट. सो Okay. बड़ा इस क्वेश्चन का देखिए, इसका आंसर ऐसे है. बिल्कुल लाजमी है कि आप जो आपके पास कोई भी फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट हो. सेफ का एक पूरा इम्प्लीमेंटेशन मॉडल है, जो कि ये देयर आर टू वेज ऑफ गोइंग, वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट सेफ एज पर द सेफ इम्प्लीमेंटेशन मॉडल. पहला रूल आपको ये बताता है कि इफ यू हैव अ बेसिक लेवल ऑफ स्क्रम और एनी अदर एजाइल मॉडल, you can use that, and then you can develop the principle of safe around it in your organization. और secondly, जो आपका जो implementation model है, if you have a waterfall model in your organization, you can use it, as a starting point, and then you can develop and move your organization from waterfall to business agility using safe. So बिल्कुल कोई prerequisite नहीं है safe की. Safe can be implemented in any organization whether you have got framework of Scrum there or not. Haji, any other questions? Thank you, Faisal.
जैद शब्बीर का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. हाउ डू वी मैनेज मल्टीपल कस्टमर सेंट्रिक रिक्वायरमेंट्स टू अचीव कंपनी वाइड एजिलिटी, specifically for product based companies where same product fulfills the requirement of multiple customers? I'm so sorry, आप अपने क्वेश्चन प्लीज रिपीट कीजिएगा, आपकी आवाज थोड़ा कट गई थी. Definitely. How do we manage multiple customer centric requirements to achieve company wide agility, specifically for product based companies where same product fulfills the requirement of multiple customers? All good. So first of all, whether you have multiple customers, one specific customer domain, or anyone, or whether you have got one product or multiple product, the thing is, what the safe model can be implemented everywhere, because what's happening, safe में एक level है agile product delivery का. सही ना, प्रोग्राम जो उसकी समझ ले प्रोग्राम मैनेजमेंट लेयर है जहां पे प्रोडक्ट मैनेजमेंट वाले काम करते हैं. So what happened is there is that you have got program management team that will manage your program management, and the product management team that's going to manage all your products, and they are going to what happens is that कि आपके जो product management team है, they are working directly with the customer, so they have got the pulse of the customer and they manage the whole end-to-end delivery of the product. So whether it's one product or multiple product, or whether it's one customer base or multiple customer base, you can easily deliver everything using the same framework. And what about the aspect of those product based companies who have one product for multiple customers? Okay, बहुत अच्छा सवाल है. वन प्रोडक्ट फॉर मल्टीपल कस्टमर, जैसे फॉर एग्जांपल जूम की बात करते हैं. जूम जो उसका जो आपका लाइव ऑनलाइन के सेशन जिस पे होते हैं, अब जूम एक प्रोडक्ट है और उसके कस्टमर सारी दुनिया है. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जो बिजनेस एजिलिटी है वो जूम को बनाने के लिए यूज की गई है. सो इन अ वे एक बड़ी जो क्लासिक एग्जांपल दूं इस लास्ट से कि यू कैन यूज दैट वन प्रोडक्ट एंड यू आर सर्विंग द होल वर्ल्ड. सो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन you are using the principle of agility to deliver the product to the end user. Awesome. मेरे पास सब क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, तो फैसल, यू कुड कंटिन्यू विद योर सेशन. If there would be any further questions, I'll be pinging back again. Yeah, please cut me off अगर कोई भी क्वेश्चन हो ना. Sure. Okay, 7 core competencies of business agility as per SAFe. सही है. तो जो सबसे पहले वो तो हर ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जा रहा है. सही है ना, कि आपके पास मल्टीपल टीम्स हैं और हर टीम का अपना स्क्रम मास्टर, प्रोडक्ट ओनर है, एंड व्हाट दे आर डूइंग, दे आर जस्ट यूजिंग द स्क्रम एक्सपी मॉडल एंड दे आर डिलीवरिंग in 2 weeks sprint or iteration. स्क्रम की दुनिया में जो है ना, हम लोग स्प्रिंट कहते हैं और सेफ ने उसको आइटरेशन करना शुरू कर दिया. तो उसमें होता है कि टीम डिफरेंट आपकी क्रॉस फंक्शनल टीम्स जमा होती हैं एक साथ. इस टीम में एक स्क्रम मास्टर होता है, प्रोडक्ट ओनर होता है, एंड दे यूज द स्क्रम मॉडल 2 weeks स्प्रिंट में वो प्रोडक्ट्स को फीचर्स को वो जो है बेसिकली डिलीवर करती हैं किसी भी प्रोडक्ट की. और वो यूज क्या करती है, कैनबान बोर्ड. So every morning there's a stand up, in front of a Kanban board, and they use basically what? The team level agility to deliver the product. Now there's another thing called technical agility. Technical agility, ये बड़ा जबरदस्त word है. Technical agility is all about making sure that you reuse the existing code and the existing architecture as much as possible. Don't reinvent the wheel. इंस्टेड जो अगर आपके पास ऑलरेडी चीज मौजूद है, आपका जो आर्किटेक्चरल प्लेटफॉर्म जो आपका है या जो आपका आर्किटेक्चर रनवे है, उस पर जो चीज भी आपके पास मौजूद है आप उसको यूज करो और उसको रीयूज को जितना कर सकते हो. एक कंसेप्ट इसमें आता है बिल्ट इन क्वालिटी का. अब होता क्या है कि अगर वाटरफॉल मॉडल के लिहाज से देखा जाए तो क्वालिटी मैनेजमेंट एक पूरा अलग प्रोसेस है. So what happens is that So what happens is that you deliver a deliverable, and then it goes to the quality management team and they do all sorts of quality inspection. Concept यहाँ पे ये है कि instead of doing the quality inspection in the end, जब आप डिजाइन लेवल पे बैठे हुए हो ना,
तो आप बिल्ट इन क्वालिटी का ख्याल रखो. यानी फॉर एग्जाम्पल, आई डिलीवर अ स्मॉल मॉड्यूल फॉर ऑफ समथिंग, and instead of just waiting for someone, I can just pass it to my peer and ask him कि यार जरा तुम इस कोड को चेक कर लो whether it is good enough or not. What I'm doing, I'm achieving something called built-in quality. ठीक है. और फिर होता क्या है, टीम टेक्निकल एजिलिटी के थ्रू आप डिलीवर करते हो अपने फीचर्स को, और सब के सब फीचर एक एजाइल रिलीज ट्रेन का पार्ट बन जाते हैं. नाउ दिस इज अ वेरी न्यू वर्ड. आई एम प्रीटी श्योर जिसने सेफ पता नहीं होता उसको नहीं पता होगा इसका. एजाइल रिलीज ट्रेन क्या होता है कि जो हम लोगों ने पीआई प्लानिंग की बात की थी, तो पीआई प्लानिंग में एजाइल रिलीज ट्रेन इज नथिंग. एक एजाइल रिलीज ट्रेन इज लाइक अ होल मैसिव प्रोग्राम. यानी एक एजाइल रिलीज ट्रेन को आप एक प्रोग्राम समझ लो, जो कि जिसके अंडर में मल्टीपल एजाइल टीम्स काम कर रही है. तो व्हाट हैपन इज दैट आप क्या करते हैं इसमें कि आप टीम लेवल पे डिलीवर करते हैं, और सब के सब चीजें आके जो है वो इंटीग्रेट होती है एजाइल रिलीज ट्रेन के लेवल पे, प्रोग्राम लेवल पे. ठीक है. नेक्स्ट अब जो कंसेप्ट है वो एजाइल प्रोडक्ट डिलीवरी का है. सही है. अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा. ये है कंसेप्ट ऑफ एजाइल रिलीज ट्रेन, जो कि आपका बात करते हैं डेवऑप्स का. डेवऑप्स का कल्चर क्या है? डेवऑप्स इज व्हाट? डेवऑप्स इज मेकिंग श्योर कि आप डेवलपमेंट और ऑपरेशंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो खत्म करें. मतलब होता क्या है कि ज्यादा डेवलपमेंट वाले ऑपरेशंस के लिए काम करते हैं. सही ना. तो इसका कंसेप्ट क्या काम और का कंसेप्ट है? कल्चर, ऑटोमेशन, लीन मैनेजमेंट, मेजरमेंट, रिकवरी. यानी इन सिंपल वर्ड, वो इन डेवऑप्स यू आर इंश्योरिंग कि आपके डेवलपमेंट ऑपरेशंस के बीच में जो भी टीयर्स उसको हटाया जाए. डेवलपमेंट वाले जो चीज डेवलप करते हैं, ऑपरेशंस वाले वो चीज यूज करते हैं. इन सिंपल वर्ड. So what happens is that in DevOps you make them sit together and you make them work together. और अगर देखा जाए तो पीआई प्लानिंग में यही काम हो रहा है. इस पीआई प्लानिंग सेशन में आपकी डेवलपमेंट टीम भी है, आपके ऑपरेशंस टीम भी है, आपके एग्जीक्यूटिव्स भी हैं, आपके डिसीजन मेकर्स भी हैं, आपके आर्किटेक्ट्स भी हैं, आपके सिस्टम्स टीम भी है. So what you are doing in agile release train, you are bringing everyone together. And agile release train किस चीज का कंसेप्ट लेके आता है? DevOps का कंसेप्ट. और DevOps is what? It's all about continuous exploration, integration and deployment. यानी कंटिन्यूअसली आप एक्सप्लोर करते हो कि किस तरह से अपनी प्रोडक्ट को इंप्रूव कर सकते हो, उसको कंटिन्यूअसली इंटीग्रेट करते हो. यानी आपकी जो भी टीम जो भी प्रोडक्ट बना रही है आप उसको इंटीग्रेट कर रहे हो, और फिर साथ साथ आप उसको कंटिन्यूअसली डिप्लॉय कर रहे हो और रिलीज कर रहे हो ऑन डिमांड. यानी जब भी मार्केट डिमांड में कोई चीज आएगी आप उसको रिलीज कर दोगे. तो एजाइल प्रोडक्ट डिलीवरी इज व्हाट? Establishing the concept and culture of DevOps. Having what? Having customer centricity in your mind and following the principle of design thinking. And what you are doing, you are basically developing on cadence and releasing on demand. What is meant by developing on cadence? Developing on cadence means having one vision for everyone. ये जो आपकी पूरी एजाइल रिलीज ट्रेन है, पूरा प्रोग्राम है, उनका एक विजन है, और वो सब के सब मिलके एक विजन पे डेवलपमेंट करते हैं. तो ये बिजनेस एजिलिटी का दूसरा रूल है. इट्स ऑल अबाउट ब्रिंगिंग एवरीवन टुगेदर इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड हैविंग अ कांसेप्ट ऑफ DevOps गोइंग टुगेदर along with the concept of agile product delivery. नेक्स्ट अब आपका जो कंसेप्ट है वो आता है इंटरप्राइज सोल्यूशन डिलीवरी का. नाउ इंटरप्राइज सोल्यूशन डिलीवरी इज अनदर बीस्ट. इसको आप ऐसे समझे कि ये दिस इज द योर टेक्निकल लेयर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन. हर ऑर्गेनाइजेशन को चलने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि उसका जो बेसिक डिलीवरी आर्किटेक्चर स्ट्रांग होना चाहिए. यानी आप इंटरनेट, कंप्यूटर, सर्वर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, क्लाउड, दे आर अ मस्ट. तो एंटरप्राइज सॉल्यूशन डिलीवरी में कौन लोग होते हैं? एंटरप्राइज सॉल्यूशन डिलीवरी में योर टीम ऑफ आर्किटेक्ट्स, योर टेक्निकल टीम. और उनका एक ही काम होता है, वो ये होता है कि आपकी जो आर्किटेक्चर रनवे जो है, ये वर्ड आर्किटेक्चर रनवे जो है, वो उसको ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते जाएं, so that your agile release train should be able to use the existing architecture to deliver value. ठीक है. एक और वर्ड है जिसको हम लोग कहते हैं टेक्निकल डेप्थ. सो टेक्निकल डेप्थ इज ऑल अबाउट इंश्योरिंग कि आप कम से कम चीजों को यूज करो. तो इंटरप्राइज सॉल्यूशन डिलीवरी इज नथिंग मोर
You are ensuring that you use the lean system and solution engineering concept. You use the concept of lean quality management, and you have a very strong architecture runway for your agile release train, so that the agile release train should be able to deliver a product that can provide value to the organization and can provide competitive advantage to the organization. ये आपकी जो लेयर है भाई, ये लीन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, यहाँ पे आपके तमाम डिसीजन मेकर्स बैठे हुए होते हैं विद द हाईएस्ट लेयर ऑफ अ सेफ एंटरप्राइज. एंड व्हाट हैपन इज दैट कि यहाँ पे तीन चीजें होती हैं. एक है कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी एंड फंडिंग, लीन गवर्नेंस एंड एजाइल पोर्टफोलियो ऑपरेशंस. यानी लीन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में वालों का काम एक ही है, स्ट्रेटेजीज बनाना, स्ट्रेटेजी थीम बनाना, पोर्टफोलियोज डिफाइन करना, और based on the defined portfolios and based on the defined projects, or based on the defined increments, what will happen, वो सब के सब फिर पिक कौन करेगा, वो सब के सब पिक करेगा प्रोग्राम लेवल प्रोडक्ट मैनेजमेंट, जो कि एजाइल रिलीज ट्रेन का पार्ट बनेगी. तो लीन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में क्या हो रहा है, आपके एंटरप्राइज एग्जीक्यूटिव्स हैं, एंटरप्राइज आर्किटेक्ट्स हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, दे एंड अप डूइंग व्हाट, they end up doing value stream mapping, and they end up finding the area of improvement. They end up optimizing the value stream. कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आपके वैल्यू स्ट्रीम को ऑप्टिमाइज करेंगे, एंड दे पुट अ सॉर्ट ऑफ अ डिलीवरी मॉडल अराउंड इट. ठीक है. और फिर दूसरा कंसेप्ट आपको क्या होता है, लीन गवर्नेंस का. अब अगर इसमें देखा जाए, दैट्स वेयर द ग्रेटनेस ऑफ सेफ इज. सेफ में एजिलिटी के साथ साथ लीन के प्रिंसिपल्स भी है. तो जैसे उमर ने पूछा था, दैट्स द ग्रेटेस्ट ऑफ सेफ. यू आर यूजिंग द एजाइल, बेस्ट ऑफ द एजाइल प्रिंसिपल लाइक स्क्रम एक्सपी, एंड यू आर यूजिंग द लीन प्रिंसिपल. तो आप लीन गवर्नेंस के जो है ना प्रोसेसेस को इसमें इंप्लीमेंट करोगे. एंड लीन इज ऑल अबाउट मेकिंग श्योर कि आपके प्रोसेस में जो वेस्ट है आप उसको हटा दो. यानी इन सिंपल वर्ड्स एक कंसेप्ट है इसमें एजाइल पीएमओ का. ठीक है. और इंटरप्राइज आर्किटेक्चर. तो पीएमओ का बेसिकली किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम होता है कि वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या प्रोजेक्ट डिलीवरी को बेसिकली जो मैनेज करते हैं. तो कंसेप्ट ऑफ एजाइल पीएमओ इधर आ गया, और साथ साथ एजाइल पोर्टफोलियो ऑपरेशन, यानी मेकिंग श्योर दैट योर पोर्टफोलियो डिलीवरी शुड बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ एजिलिटी, एंड इट शुड प्रोवाइड वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन. यानी इन सिंपल वर्ड, यू नो, आपके पास एक कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस है, एक लीन एजाइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मौजूद ऑर्गेनाइजेशन में. अब बात है, फ्रैंकली स्पीकिंग, आई डोंट नो वेदर पाकिस्तान में भी एलपीएम का लीन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का कंसेप्ट आया नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, यू नो, इट्स ऑन द राइज राइट नाउ. द मतलब जहां के जो मेजर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे आर इंप्लीमेंटिंग सेफ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज दे कैन सी द क्लियर वैल्यू. जस्ट इमेजिन, अगर आपके पोर्टफोलियो लेवल पे अगर आप लीन प्रोसेसेस लेके आ जाओ, तो आपकी डिलीवरी कितनी एफिशिएंट हो सकती है. नेक्स्ट अप, द कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एजिलिटी. हम लोगों ने हमेशा बात की टीम लेवल एजिलिटी की. सेफ और बिजनेस एजिलिटी कहता है कि यार आप इस कॉन्सेप्ट को उठा के ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे पहुंचा दो. यानी you should have, you know, lean thinking people and agile team. Who are lean thinking people? Like everyone in an organization should think in a typical lean way. और उसके लिए क्या होता है, they should know the concept of house of lean, they should know the concept of safe principle and agile manifesto. Faisal, जी, सॉरी कटिंग अगेन. Yeah. एक और क्वेश्चन हमारे पास आया है जैद शब्बीर की तरफ से. Yeah. He's asking, bring everyone together is a big challenge to achieve agility. What's the key to achieve this challenge? What's the key to achieve this challenge? देखें, एक बात मैं आपको बता दूं, इट्स अ गुड क्वेश्चन. ये इम्प्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है. इसका आपको इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप है जो कि आपको इसकी वेबसाइट पे मिल जाएगा, और आई रिक्वेस्ट यू, मैं एंड में इसकी वेबसाइट का लिंक है, आप उसको नोट करके जरूर जाइएगा. इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर यू टू लर्न. उसमें पूरा इसका इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप है. अब इसको गौर से सुना. आप जो कह रहे हैं व्हाट्स द की टू ब्रिंग एवरीवन टुगेदर, सबसे पहले याद रखिएगा, when you are going to implement safe in your organization, the first people you are going to train are whom? Your leaders. यानी एक इसका लीडिंग, इसका एक सेफ का एक कोर्स होता है, इसका नाम है लीडिंग सेफ. दैट कोर्स इज रिकमेंडेड फॉर प्रोग्राम मैनेजर्स एंड डिसीजन मेकर्स. तो जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में इसको इंप्लीमेंट करने जाते हैं, तो आप पहले 2 दिन का पूरा सेशन करते हैं
अपने लीडर्स के साथ, जहां पे आप पूरा सेफ के और लीन के प्रिंसिपल्स उनको बताते हैं। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब ये इसकी वीकनेस भी कह लें या वे समझने के लिए इसका सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट है, you need leadership support. The only way you can implement safe successfully is that you should have support of your leaders. तभी जब आप सेफ को इम्प्लीमेंट करने जाते हो तो आप उसकी वेबसाइट पे जाकर देखना उसका इम्प्लीमेंटेशन मॉडल। पहला स्टेप में लिखा हुआ है ट्रेन द लीडर्स एंड प्रिपेयर देम फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। दैट्स व्हाट इट इज। Thank you, Faisal. Thanks a lot. You could continue with. ओके जी। सो जब ऑर्गेनाइजेशन एजिलिटी की हमने जो बात की तो इट्स ऑल अबाउट आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अगेन वही बिजनेस एजिलिटी का कंसेप्ट आ गया है ना कि देखिए अब ये एक बड़ा, जैसे अभी जो क्वेश्चन भी पूछा था ज्यादा आई डोंट नो गुड क्वेश्चन कि कैसे करना है, ये इसकी सबसे बड़ी वीकनेस। रिमेंबर वन थिंग, ये इट्स लाइक अ चेन सॉर्ट ऑफ अ थिंग। एंड एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको बताता हूँ, आई हैव मेट विद लॉट ऑफ लीडर्स इन द पास्ट। मैं उनसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि यार एक बात बताएं आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। वो मुझे जवाब देते हैं यार हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि हमारी टीम एफिशिएंट नहीं है। और जब कोई लीडर मुझे ये बात बोलता है ना तो मैं दिल में कुछ बोलता हूँ, मैं कहता हूँ यार ओ माय गॉड, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि उसने कि वो खुद इनएफिशिएंट है तभी उसकी टीम एफिशिएंट नहीं है। रिमेंबर, दुनिया की हर मैनेजमेंट थ्योरी में एवरीथिंग गोज टॉप डाउन। अगर आपकी लीडरशिप अच्छी है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी होगी, अगर आपकी लीडरशिप बेकार है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन बेकार होगी। सो अगर आपको कभी कोई लीडर ये मिलता हुआ बोले कि मेरी टीम बहुत इनएफिशिएंट है तो समझ लें कि भाई वो लीडर भी इनएफिशिएंट है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब ऑर्गेनाइजेशन एजिलिटी की बात करते हो यू शुड ब्रिंग एवरीवन टुगेदर, ठीक है। और सेकेंडली अगर इसको देखें लीन बिजनेस ऑपरेशंस, तो ये जो फिगर है भाई ये है आपकी वो वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग कि आप डिले टाइम देख रहे हैं। आपने कहा एक प्रोसेस के बाद इतना डिले टाइम, अगर मैं इस डिले टाइम को कम कर दूं तो मेरा बिजनेस ऑपरेशन एफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। अब इमेजिन करो आप किसी ऐसे लीडर के साथ काम कर रहे हो जो इस तरह से सोचता हो, तो इमेजिन करो वो लीडर कितनी वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन को। और साथ साथ कंसेप्ट क्या है, स्ट्रेटजी एजिलिटी का, ठीक है। आई बी वेरी स्ट्रेट, देयर नॉट अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन ऑस्ट्रेलिया जो कि अभी तक यहां तक पहुंची है। ज्यादातर याद रखिएगा मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन at this point of time is still in the journey of implementing it properly. बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन दुनिया, जैसे बोइंग ने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, आई बिलीव नासा ने इम्प्लीमेंट किया हुआ है प्रॉपरली, आई बिलीव एप्पल में भी इम्प्लीमेंटेड है, ठीक है। नेक्स्ट अप द कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूअस लर्निंग, यानी एक कंटिन्यूअस लर्निंग जो होती है ना वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को चाहते हैं कि वो डेवलप हो और वो डिलीवर करे, सही है। और उसमें कंसेप्ट क्या आता है, उसमें कंसेप्ट ये आता है कि भाई आप एक लर्निंग कल्चर क्रिएट करो, ठीक है। आप रिलेंटलेस इंप्रूवमेंट में जाओ। आप सब लोगों ने पीडीसीए जरूर सुना होगा, प्लान डू चेक एंड एक्ट। ये समझ लें कि ये एक लीन प्रिंसिपल है जो कि क्या बात करता है, वो ये कहता है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसको आप लगातार उसमें इंप्रूवमेंट को ढूंढते रहो। यानी बड़ा इंपॉर्टेंट है दैट यू शुड हैव अ कांस्टेंट सेंस ऑफ डेंजर। कांस्टेंट सेंस ऑफ डेंजर फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम योर कंपटीटर्स, कि अगर मैं डिलीवर नहीं करूंगा तो मैं कंपटीटर आगे निकल जाएगा। यू शुड ट्राई टू ऑप्टिमाइज इन द होल, प्रॉब्लम सॉल्विंग कल्चर होना चाहिए। यू शुड ऑलवेज रिफ्लेक्ट की माइलस्टोन, यू शुड हैव फैक्ट बेस्ड इंप्रूवमेंट। यानी सिंपल सी बात है कि कंटिन्यूअस लर्निंग कल्चर होना चाहिए और साथ साथ कल्चर ऑफ इनोवेशन। याद रखिएगा एजिलिटी के लिए ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एजिलिटी और लीन के अंदर बात समझी जाती है कि इनोवेशन will bring what? Will bring improvement in the overall delivery of your product. Innovation will keep you competitive in the market. The classic example we have is the fall of Nokia. आज से 10 साल तो नहीं, 15 साल पहले, सही है ना, वी यूज टू हैव अ नोकिया फोन, हम लोग सबके साथ अकड़ के दिखाते थे यार देखो नोकिया का फोन है हमारे पास। और उसके बाद ऐसा हुआ कि सैमसंग और एप्पल उसको आके खा गया, बिकॉज नोकिया जिद पे अड़ गया कि हम जो है भाई अपने सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना उससे नहीं हटेंगे।
नोकिया का डिवाइस की रीजन क्या है? एंड्रॉइड बेस्ड डिवाइसेस आगे, लोगों ने कहा कि वाह भाई वाह क्या बात है, हमें आजादी, हम कुछ भी कर सकते हैं इसमें। ठीक है, नोकिया ने इनोवेशन कल्चर को आगे नहीं आने दिया, उन्होंने कहा नहीं भाई, जो हार्ड बाउंड हम उसी में रहेंगे, दे वेंट आउट ऑफ द बिजनेस। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप इनोवेशन कल्चर लेके आओ। और इसके अलावा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यू शुड हैव अ बिजनेस एजिलिटी सेल्फ असेसमेंट। सो आपके पास जो ऑर्गेनाइजेशन में समझ लें कि आपके एक्टिवेशन मैनेजर्स होते हैं, आपके बिजनेस एजिलिटी के ऑडिटर्स होते हैं, जिनका काम, या आपके फॉर एग्जांपल स्क्रम मास्टर का भी काम हो सकता है कि वो अपनी आपके ऑर्गेनाइजेशन का एक तरीके से सेल्फ असेसमेंट करेगा। And based on the self-assessment, you will find the way to improve your organization and take it to a different level in business agility. Next up, not only agile, देखें एक बात तो है कि जो concept of agility जो आया था भाई, वो आया था कहां से? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से। So agility and Scrum was basically used in software development. लेकिन वक्त के साथ साथ अब एजिलिटी इज यूज्ड इन टेलीकम्युनिकेशन, इन अ लॉट ऑफ डोमेन्स। यहाँ पे बैंकिंग के डोमेन में एजिलिटी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, एजिलिटी के प्रिंसिपल्स का। तो कुछ और एजाइल के मेथड्स आ, यानी द कंसेप्ट ऑफ एजाइल एचआर, इट्स ऑलरेडी इन द मार्केट, आप गूगल करके देख लेना, एजाइल एचआर, एजाइल मार्केटिंग, एजाइल ऑपरेशंस, एंड द कंसेप्ट ऑफ लीन एजाइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। यानी लिटरली एजाइल एचआर के प्रिंसिपल्स मौजूद है कि किस तरह से आप उसको ले जाके अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, या किस तरह से एजाइल मार्केटिंग के कंसेप्ट यूज करके आप अपनी मार्केटिंग या सेल्स को इंप्रूव कर सकते हो, या कैसे अपने ऑपरेशंस को ज्यादा जो है आप जो है इंप्रूव कर सकते हो। नाउ दिस इज द लास्ट स्लाइड। ये वेबसाइट है यार, एंड आई लाइक एवरी वन ऑफ यू टू नोट इट एंड गो देयर एंड स्टडी। जो सबसे जो वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रेटनेस ऑफ सेफ इज दैट उन्होंने इस वेबसाइट पे सब कुछ रखा हुआ है। ये जो मैंने जो स्लाइड भी बनाई, मैंने उसी से देख के बनाई है, इट्स नो रॉकेट साइंस। So you should definitely visit this website. Going back, before I wind up, this is what the model is. ये आपका टीम लेवल है, एसेंशियल सेफ, जहां पे आप एजाइल और स्क्रम यूज कर रहे हो। ये आपका लार्ज सॉल्यूशन लेवल है, जहां पे आपके टेक्निकल लोग बैठे हुए हैं, और यहाँ पे आपकी स्ट्रेटजीज चल रही हैं पोर्टफोलियो लेवल पे। पोर्टफोलियो लेवल पे पोर्टफोलियो विजन, साइड थीम्स है और लिस्ट इनिशिएटिव्स है, जो कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट लेवल पे आते हैं, प्रोग्राम लेवल पे आते हैं। पीआई प्लानिंग होती है, और फिर जो कि 3 महीने में एक दफा होती है, टीम जाती है, उसको 3 महीने तक 2-2 हफ्ते के स्प्रिंट में डेवलप करती है, एंड दैट्स हाउ द फंक्शन बेसिकली। सो दैट्स अबाउट इट आई बिलीव फ्रॉम माय साइड। अगर आप किसी को भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, बट दिस इज माय वेबसाइट एंड दिस इज माय ईमेल एड्रेस। फोन नंबर मैं दूंगा नहीं, वाला मेरा मसला हो जाएगा बहुत बड़ा, सही ना। लेकिन ये है कि आप, ये मेरा ईमेल है, ये मेरी वेबसाइट है, आप चाहें तो मुझे लिंक्डइन पे भी सर्च कर सकते हैं। इफ यू गाइस हैव गॉट एनी क्वेश्चन, जस्ट ड्रॉप मी एन ईमेल, आई विल आंसर इट टू यू बेस्ड ऑन माय बेस्ड ऑन माय अवेलेबिलिटी। कुछ भी पूछना, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई सजेशन चाहिए, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू गाइस। ठीक है, ऑल गुड, थैंक यू सो मच यार। थैंक यू फैसल, थैंक्स अ लॉट। आप अपनी ये इंफॉर्मेशन वाली स्क्रीन को थोड़ा सामने ले आएँ। मैं इस चीज़ को मैं चैट में भी शेयर कर देता हूँ लोगों के साथ। प्लीज कुछ भी आपको, एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग, आई एम मोर देन हैप्पी टू आंसर। लेकिन आंसर में हो सकता है कभी कभी डिले भी आ सकता है, बिकॉज आई हैव गॉट 10,000 थिंग्स टू टेक केयर एज वेल। But you know, I must congratulate you guys, like Umar and Salman, all of you guys. You guys are doing a good job. I was so happy to see, mashallah, like you guys are doing something in Pakistan. Because यार आपको बता दूं, the future of delivery is agility. और not only that, you know, I'd like you guys to visit this website. ये जो जितनी भी स्लाइड्स हैं, इसी में मैंने वही से बनाई हैं, सब कुछ वहां पे मौजूद है, उसको जाकर स्टडी करो, बिकॉज दिस इज द फ्यूचर ऑफ बिजनेस एजिलिटी। Right. Thank you Faisal, thanks a lot, thank you so much for your nice words. Viewers, हमारे मैंने फैसल का ईमेल एड्रेस लिख दिया है चैट के ऊपर, तो whenever you feel you could come in touch with him, Faisal at valuemetrics.com .au, valuematics, okay. Yeah. तो that's the thing. Thanks a lot Faisal. एक थोड़ा सा कमेंट आया है हमारे पास जैद शब्बीर की तरफ से कि agile is not future, it's a present requirement, and that is so true. Very nice. I totally I take my word back. आप बिल्कुल सही बोलो, मेरी गलती है। Agile is here,
बट फ्रॉम फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू मैं क्या हूँ, वो एंड टू एंड बिजनेस एजिलिटी की बात कर रहा हूँ एज द फ्यूचर। डेफिनेटली लेकिन आपकी बात काफी हद तक सही थी कि बिजनेस एजिलिटी लाने के लिए तमाम जो सपोर्टिंग प्रोसेसेस हैं उनको भी हमें एजाइल पे लाना होगा। एंड यस, यू हैव नेल्ड इट वेरी करेक्टली कि एजाइल एचआर, एजाइल मार्केटिंग, यानी वो एरियाज जो कि सपोर्टिंग एरियाज होते हैं बट दे आर वेरी क्रिटिकल एरियाज, वहाँ भी हमें एजाइल की इम्प्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत है, न सिर्फ डेवलपमेंट एरियाज में, क्योंकि ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन ना इस वक्त सिर्फ डेवलपमेंट एरियाज में एजाइल को इम्प्लीमेंट करती हैं। एंड आई एग्री विद यू, safe talks about bringing in agile in the whole pipeline. So I so much agree with you. Thanks a lot, थैंक यू, Faisal. Thank you so much. थैंक यू ब्रदर। Thanks a lot. थैंक्स गाइस, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज। Thank you. Bye.